Hello students, now we discuss the next session of the rational number. In the last session what we have discussed, that what is the rational number, what is the standard form of rational number, what is the lowest form of rational number. But the first chapter is what? First chapter of the mathematics is a real number. And real number is basically collections of rational number and irrational. In the last session what we have discussed, what is the rational number? Rational number क्या होता है? Any number which can be expressed in the form of p by q, where p and q are both are integer, q never equals to 0, and both p and q have no other common factor other than 1. उनका एक ही कॉमन फैक्टर होगा एंड दैट कॉमन फैक्टर इज 1 ऑन 1 के अलावा उनका कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होगा. तो सच नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स. ठीक है. सो रैशनल नंबर जो है x such that x is equals to p by q, where p and q belongs to integer, q never equals to 0, and both p and q have only one common factor, that is only 1. एक ही कॉमन फैक्टर होगा और वो कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1. Now second type of real numbers are irrational numbers. Irrational numbers are those numbers which cannot be expressed in the form of p by q. जिन नंबर्स को हम p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो नंबर्स क्या होते हैं आपके? irrational. x such that x is not equals to p by q, where p and q belongs to integer, q never equals to 0. तो such numbers are called irrational numbers. ठीक है. रैशनल नंबर्स में हम किसको ले सकते हैं? रैशनल नंबर्स में जैसे आप 1/2, 5/6, -3/8, these are the rational numbers. जिनमें हम जिन नंबर्स को हम p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स. जिनको p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो क्या होते हैं? इरैशनल नंबर्स. नाउ एग्जांपल्स ऑफ इरैशनल नंबर्स. इरैशनल नंबर्स में हम किसी को ले सकते हैं √2, √3, pi, √5. These are called irrational numbers which cannot be expressed in the form of p by q. तो जो नंबर p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होते हैं उनको हम irrational numbers बोलते हैं. And the collection of rational and irrational number, that collectively known as a real number, उनको हम क्या बोलते हैं? real number. Now what we have discussed here, we discussed the classification of real numbers into two categories, rational and irrational. तो जिन नंबर्स को p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वो रैशनल बोले जाते हैं. जिनको p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उनको इरैशनल नंबर बोलते हैं. सो दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया टू डिसाइड अ नंबर इज रैशनल और इरैशनल. नाउ सेकंड क्राइटेरिया टू डिसाइड अ नंबर इज रैशनल और इरैशनल, दैट इज अ डेसिमल एक्सपेंशन of a real number. Now second criteria to decide a number is rational or irrational, that is decimal expansion of that number. If the decimal expansion, if I am taking a decimal expansion of rational number, so decimal expansion of real number is either terminating or non-terminating recurring. Decimal expansion of rational numbers is either terminating or non-terminating recurring.
हमेशा कैसा होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग अ नंबर x इज इक्वल टू 1/5, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन करें 5 1 कितना आ गया 1/5 इज इक्वल टू पॉइंट। तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रहा है, सर्टेन स्टेप्स के बाद टर्मिनेट हो रहा है। जैसे x इज इक्वल टू 1/8, तो आप देखिए 8 2 जा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, so ये गया 0.1। डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आ रहा है, टर्मिनेटिंग आ रहा है। कैसा आ रहा है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, एंड आइदर इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। ठीक है, जैसे x इज इक्वल टू 1/3, तो देखिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन करें तो 3 1 0 0.10 हो गया, 3 3 जा 9 1 अगेन 0, 3 3 जा 9 अगेन 1 0, 3 3 जा 9 अगेन 1 0, 3 3 जा 9 1। So what decimal expansion is 0.3333. So x is equal to 0.3 bar. So its decimal expansion is what, non-terminating and recurring. Certain digit or number of pair of digits repeat itself. So that is called decimal expansion of rational number. तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। तो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, आइदर टर्मिनेटिंग और आइदर नॉन टर्मिनेटिंग। बट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ irrational number is non-terminating क्या रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीट। ना तो वो आपका डिवीजन प्रोसेस टर्मिनेट हो पाएगा, ना ही आपके डिजिट्स रिपीट हो पाएंगे। जैसे √2, why √2 is irrational number, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है 1.4 1 4 1 2 3 5 एंड सो ऑन। तो कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं और ये प्रोसेस बार बार चल रहा है। ठीक है, 5 की वैल्यू होती है 3.1425132, दैट्स इट। तो इस तरीके से वैल्यू क्या करती है, रेगुलरली रिपीट रहती है। तो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, जैसे आपने x लिख दिया, x इज इक्वल टू 0.15015015000150000, तो दैट इज irrational, whose decimal expansion is non terminating non recurring, so that number is called irrational number. So that is the second criteria to decide a number is rational or irrational. First criteria, the number which expressed in the form of p by q is rational, which cannot be expressed in the form of p by q is irrational. Second, if the decimal expansion of the number is terminating or non-terminating recurring, it is rational number. Or if the decimal expansion of number is non-terminating non-recurring, then it is called irrational number. क्या होगा वो, irrational number. Is it clear? So these are the two criteria to decide a number or rational or irrational. Expansion of the number is terminating or non-terminating recurring, then it is called
rational number, and if the decimal expansion of the number is non-terminating recurring, then it is called irrational number. ठीक है? Is any doubt in that part? Any doubt? Now suppose, now next we discuss without actually doing the long division, मतलब डिवीजन प्रोसेस करे बिना कैसे पता करना है कि नंबर रैशनल है या इरैशनल, क्योंकि हमने क्राइटेरिया तो बोल दिया कि एक ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन यदि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है तो रैशनल नंबर है, और जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो वो इरैशनल है. बट दैट वी हैव डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस. यदि डिवीजन प्रोसेस करेंगे उसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, वो तब पता चलेगा. बट नाउ विदाउट डूइंग द एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, हाउ टू डिसाइड दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग? तो वो कैसे डिसाइड होगा? सपोज इफ x is equals to p by q, and if q can be expressed in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, where n, m and n are non-negative integer. क्या बोल रहा है कि सपोज एक नंबर है x जिसको हमने p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है, और उसका जो डिनोमिनेटर है q, उस q को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें? 2 to the power m and 5 to the power n, where m and n are non-negative integer, then its decimal expansion is टर्मिनेटिंग. यदि हम q को 2 to the power m 5 to the power n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा. और if x is equals to p by q and if q cannot be expressed in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are non-negative integer, then decimal expansion is non-terminating recurring. I have explained basically 2 points. दोनों पॉइंट क्या है वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूं. जैसे एक नंबर मैंने p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है, तो जो भी नंबर p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा तो वो क्या होगा? रैशनल नंबर होगा. तो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके का होता है, आइदर टर्मिनेटिंग और आइदर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. तो अब कैसे, विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, मुझे कैसे पता करना है कि उसका डिवीजन प्रोसेस टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग? तो यदि मैं q को 2 to the power m 5 to the power n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग. और यदि मैं q को 2 to the power m 5 to the power n के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, then its decimal expansion is non terminating recurring. क्या हो जाएगा? non terminating recurring. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे इस चीज को हम एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं तो आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि कौन सा रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है विदाउट एक्चुअली डूइंग द डिवीजन प्रोसेस. जैसे देखिए, सपोज इफ आई एम रिप्रेजेंट अ नंबर, एक नंबर लिया मैंने x इज इक्वल्स टू 11 by 225. Now check whether its decimal expansion is terminating
और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्योंकि देखिए ये नंबर रैशनल नंबर है, ये तो कंफर्म हो गया क्योंकि इसको p बाय q फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया है। p और q दोनों क्या हैं, इंटीजर हैं, q की वैल्यू 0 नहीं है, तो कंपलसरी ये रैशनल नंबर हो गया। लेकिन इसका डेसिमल एक्सपांशन अब टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो या तो पूरा लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस करो, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। दूसरा तरीका क्या है कि इस q को ऑब्जर्व किया, q क्या है आपका 225। अब हमें क्या करना है, इस 225 का फैक्टराइजेशन करना है और उसको 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं, वो चेक करना है। तो 225 का फैक्टराइजेशन किया तो क्या आया देखिए, पहले 9 है तो 3 से गया तो 7, फिर 5, फिर 3 से गया 15, नहीं एक सेकेंड 25, ठीक है, फिर 5, फिर 5। So that is q is equals to 3 square into 5 square, 3 square into 5 square। तो q cannot be expressed in the form of 2 to the power m into 5 to the power n. So its decimal expansion is non-terminating recurring। Its decimal expansion is non-terminating recurring। ये आप बाय डिफॉल्ट इस पूरा इस नंबर का लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस कैलसी से करके भी चेक कर सकते हो, तो आप देखेंगे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आएगा। तो विदाउट डूइंग एक्चुअल प्रोसेस, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, हमने डिसाइड कर लिया कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके का है। जैसे सपोज एक और एक क्वेश्चन लिया, जैसे हमने x लिखा, x इज इक्वल टू 5/8, तो q की वैल्यू क्या है 8। तो अब q को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 8 का फैक्टराइजेशन किया, so 2, 4 आया 2, फिर 2, so it can be represented as 2 to the power 3 into 5 to the power 0। अब देखिए m और n की वैल्यू 0 हो सकती है, क्योंकि हमने क्या बोला था, m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर नहीं होने चाहिए, पॉजिटिव हो सकते हैं, 0 हो सकता है। तो 8 को हमने कैसे लिख दिया, 2 to the power 3 into 5 to the power 0। तो 5 to the power 0 कैन बी 1, तो ये हो गया 8 into 1 8। तो here q can be expressed in the form of 5 to the power n into 2 to the power m। So its decimal expansion is terminating। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इज इट क्लियर, समझ में आया आपको? ठीक है, आप अपनी तरफ से कोई नंबर बताइए जिसको चेक करना हो कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। बुक, टेक्स्ट बुक है अभी आपके पास? 5/82। सो Q आपका 82 है, इसको हमने फैक्टराइज किया, देखिए तो ये हो गया 41। 41 अपने आप में आई थिंक प्राइम नंबर है, तो ये हो गया 2 into 41। So it cannot be expressed in the form of 2 to the power m 5 to the power n। So its decimal expansion is non-terminating recurring। ठीक है, आपको क्या चेक करना है, आपको डिनोमिनेटर को यदि आप 2 to the power m 5 to the power n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अदरवाइज उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। यदि उसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो टर्मिनेटिंग, नहीं कर सकते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और कोई एग्जांपल बताइए मेरे को।
दिशा कोई नंबर बताइए। फाइव अपॉन ओके 98 तो ऑब्वियस सी बात है कि 7 इंटू 7 हो जाएगा, तो यूं भी नहीं आने वाला, 7 तो आएगा ही नहीं। ठीक है, जैसे मैंने नंबर लिखा 125 बाय 441, क्या लिख दिया 125 बाय 441, तो Q की वैल्यू क्या है 441, तो इसको फैक्टराइज किया, देखिए 441, तो पहले 3 से कैंसिल हुआ, 3 वन जा 3, 14 आया, 3 4 जा 12, 7 147, फिर अगेन 3 से कैंसिल किया, सो 3 4 जा 12, 3 9 जा आपका 27, then 7 and then 7. So Q is expressed in the form of 3 square into 7 square. So again Q cannot be expressed in the form of 2 to the power m, 5 to the power n. So its decimal expansion is non-terminating repeating or non-terminating recurring. Is it clear? ठीक है, जैसे सपोज एक और एग्जांपल हम, जैसे सपोज x is yes 125, मतलब आप डिनोमिनेटर में 125 लेना चाह रहे हैं, यस, तो 35 डिवाइड बाय 125 और सॉरी 37 डिवाइड बाय 125, जैसे ये ले लिया, तो Q की वैल्यू हो गई 125, तो 125 क्या हो जाएगा, देखिए 5 25 5 5, so it will be 5 to the power 3, तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power 0 into 5 to the power 3. हाँ, it can be, Q can be expressed in the form of 2 to the power m, 5 to the power n, so its decimal expansion is terminating. So without doing the long division, whether check the decimal expansion is terminating or non-terminating repeating or recurring. ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लिया, जैसे फॉर एग्जांपल x is equals to 18 by 50, ठीक है, तो Q की वैल्यू क्या है 50, तो 50 का फैक्टराइजेशन करें, यस, so Q is equals to 2 to the power 1, 5 to the power 2, so 2 to the power 1, 5 square, so Q can be expressed again in the form of 2 to the power 5, 2 to the power m, 5 to the power n, so again its decimal expansion is terminating. Is it clear? So without doing the actual long division, if the prime factorization, basically ये क्या है, if the prime factorization of Q is in the form of 2 to the power m, 5 to the power n, then its decimal expansion is terminating. If the prime factorization of Q cannot be expressed in the form of 2 to the power m, 5 to the power n, then its decimal expansion is non-terminating repeating or non-terminating recurring. Is it clear? Confirm?